ملک میں تسلسل کا فیصلہ ہو گیا۔ رانا ثناءاللہ کا بڑا انکشاف۔ مری میں بڑوں کی بیٹھک ہوئی، کیا اس میں تسلسل کا فیصلہ ہوا؟ رانا ثناءاللہ نے جواب میں کہا جی تسلسل کا فیصلہ ہو گیا۔ تسلسل 5 سال یا 10 سال کے لیے ہوگا؟ اس سوال پر وزیر اعظم کے سیاسی مشیر کا جواب تھا جو بھی فیصلہ ہوگا آئین کے مطابق ہوگا۔ کچھ لوگوں کو شک تھا، ہمیں تو اس کا پہلے سے ہی پتا تھا۔ میں ابھی بڑی ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی، نواز شریف صاحب تھے، میاں شہباز شریف صاحب تھے، مریم بی بی تھیں، 2 اور بہت اہم شخصیات تھیں۔ وہاں سنا تسلسل کا فیصلہ ہو گیا بس اتنا ہی پوچھنا تھا۔ 5 سال 10 سال یہ کوئی بات ہوئی؟ چلے وہ تو آئین کے مطابق ہی ہوگا نا، لیکن ہو گیا ہے فیصلہ۔ برل شکریہ رانا صاحب۔ یہ فیصلہ آپ کو ہی شک شبہ تھا، ہمیں تو اس کے اوپر پہلے بھی کوئی ہمیں جب ایسا کوئی۔ رانا صاحب بہت شکریہ، ہمیشہ کی طرح۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صدارتی نظام اور نئے صوبوں کے حامی علی امین گنڈاپور کہتے ہیں ملک میں صدارتی نظام ہونا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی بھی صدارتی نظام حکومت کے حامی ہیں۔ چھوٹے صوبے ہوں گے تو گورننس بہترین ہوگی۔ مذاکرات کے لیے راستہ نکالنے کے حق میں ہوں۔ بانی سیاست دان ہیں، سیاسی قوتوں سے مذاکرات میں انہیں آسانی ہوگی۔ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں صرف ANP کو کالا باغ ڈیم پر اختلاف ہے۔ سندھ سمجھتا ہے کہ کالا باغ ڈیم بننے سے حقوق متاثر ہو رہے ہیں تو بیٹھ کر بات کرے۔ ڈیم ہماری لاش پر بنے گا، یہ کہنے والے سیاست کر رہے ہیں۔ فل کورٹ میٹنگ سے پہلے جسٹس بابر ستار کا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا۔ روسٹر کی تیاری اور کیسز فکس کرنے میں شفافیت کی کمی ہے۔ خط میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے طریقہ کار پر بھی سوالات اٹھائے گئے۔ حسین احمد چودھری سے مزید جانیں گے۔ جی حسین۔ جی دیکھیے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فل کورٹ جو اجلاس ہے آج 2 بجے رکھا گیا تھا، اس سے قابل بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ ججز کے اختلافات جو ہے وہ کھل کر سامنے آئے ہیں۔ جسٹس بابر ستار کا ایک خط 4 صفحات پر مشتمل جو ہے وہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو لکھا گیا ہے، وہ خط جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور خط کی کاپیاں تمام ججز اور رجسٹرار کو بھیجی گئی ہیں۔ اس میں انہوں نے چند سوالات کھڑے کیے ہیں اور کہا ہے کہ کیا آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ کیا ججز یقین کرتے ہیں کہ شہری اپنی بنیادی حقوق کا انہیں محافظ سمجھتے ہیں؟ جسٹس بابر ستار نے لکھا کہ کیا ہائی کورٹ نے ضلع عدلیہ کو آزاد ادارہ بنانے کی کوشش کی؟ روسٹر کی تیاری، کیس فکسز میں شفافیت کی کمی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ہم روزانہ اپنے فیصلوں میں افسران کو کہتے ہیں کہ آپ بادشاہ نہیں، نہ ہی اختیارات بغیر حدود و قیود ہے۔ کیس فکس کرتے ہوئے سینئر ججز کو نظر انداز کر کے ٹرانسفر اور ایڈیشنل ججز کو کیسز بھیجے جا رہے ہیں۔ خط میں مزید لکھا گیا ہے کہ انتظامی اختیارات استعمال کرتے ہوئے کیا ججز اور چیف جسٹس کو یاد نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ کنگ نہیں بلکہ پبلک آفیشلز ہیں؟ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے ججز کے بیرون ملک جانے کے لیے NOC لینا لازم قرار دیا ہے، گویا ججز کو ECL پر ڈالا گیا ہے۔ ادارے بنانے میں دہائیاں لگتی ہیں جبکہ تباہ کرنے میں کچھ وقت نہیں لگتا۔ یہ 4 صفحات پر مشتمل جو خط ہے جسٹس بابر ستار نے چیف جسٹس کو لکھا ہے اور آج جو ہے وہ 2 بجے دن کو فل کورٹ میٹنگ ہونی جا رہی ہے اور اس میں بھی امکان یہی ہے کہ یہ جو خط ہے اس حوالے سے اس میں ڈسکشن لازمی ہوگی۔ جی بہت شکریہ حسین احمد چودھری۔ بنوں میں فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹرز پر بھارتی سرپرستی میں فتنہ، خوارج کا دہشت گرد حملہ۔ بہادری سے لڑتے ہوئے سیکیورٹی فورسز کے 6 جوان وطن پر قربان ہو گئے۔ جوانوں نے بھرپور جوابی کارروائی میں 5 خوارج جہنم واصل کر دیے۔ بزدلانہ حملہ ناکام بنا دیا۔ بارود سے بھری گاڑی ٹکرانے سے سیکیورٹی دیوار کا ایک حصہ منہدم ہو گیا۔ 3 شہری زخمی ہوئے۔ خبر دیں آپ کو کبیروالا سے، جہاں پر دریائے راوی میں ہیڈ سدنائی کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے اور ہیڈ ورکس کو بچانے کے لیے مائی سفورہ والا بند توڑ دیا گیا ہے۔ خرم شہزاد ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ جی خرم۔ کبیروالا میں دریائے راوی ہیڈ سدنائی پر اس وقت انتہائی اونچے درجے کا سیلاب جاری ہے، جس میں تقریباً اس وقت 1,68,000 جو ہے وہ سیلابی ریلا گزر رہا ہے اور اس پانی کی شدت کی وجہ سے ہیڈ ورکس کو بچانے کے لیے انتظامیہ نے جو ہے مائی سفورہ کے مقام پر جو بند برج لگائے گئے تھے وہ بند توڑ دیا گیا ہے، جس برج لگانے کے مقصد یہی تھا کہ پانی کی جو شدت تھی، اس کا بہاؤ تھا، اس کو کم کیا جائے، کیونکہ پانی ہیڈ کے بعد کراس کرنے کے بعد
कोट इस्लाम और उसके आगे आबादियों में दाखिल हो रहा था। अब ये बंद तोड़ने की वजह से पानी के बहाव में कमी आई है, जिसकी वजह से पानी जो है आगे नुकसान कम करेगा। जी बहुत शुक्रिया। अपडेट करें आपको, दरियाए चनाब में हेड मराला के मकाम पर पानी का बहाव खतरनाक हद तक बढ़ने का खदशा है। दरियाए चनाब में हेड मराला के मकाम पर पानी का बहाव 2 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया है। मजहर इकबाल हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी मजहर। भारत ने इतवार की रात सलाल डैम जो दरियाए चनाब पर मकबूजा कश्मीर में वाक़ है उससे पानी का अखराज बड़े पैमाने पर किया था और वो आज कुछ देर कबल पाकिस्तान में पहुंचना शुरू हुआ है। अब जो दरिया आज 98,000 क्यूसेक और नॉर्मल पोजीशन पे था हेड मराला के मकाम पर, उसमें 1 लाख क्यूसेक से जायद का चंद घंटों में इजाफा हुआ है और ये नॉर्मल से निचला दर्जा और इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब आ गया है। और जो जराए हैं उनका ये कहना है कि आने वाले वक्त में इसमें मजीद इजाफे का खदशा है। पीडीएम में आज इसका अलर्ट भी जारी कर चुका है कि आने वाले वक्त में दरियाए चनाब में सैलाब आ सकता है। इससे सैलाब से सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, जंग, हाफजाबाद, चनियोट, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान के इलाके एक मरतबा फिर उनमें बड़े पैमाने पर तबाही का खदशा है। चंद रोज कबल भारत ने जो पानी छोड़ा था 9 लाख क्यूसेक से जायद का रेला जो हेड मराला पर पहुंचा था, वो अभी जंग की हदूद में तबाही फैला रहा है। अभी वो आगे नहीं पहुंचा कि भारत की जानिब से एक मरतबा फिर जो है नया सैलाबी रेला छोड़ दिया गया है और एक मरतबा फिर दरियाए चनाब में हेड मराला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है और पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। जी बहुत शुक्रिया मजहर इकबाल, हमें अपडेट कर रहे थे। दरियाए चनाब हेड मराला के मकाम पर ही हमारे नुमाइंदे आमिर जावेद भट्ट भी मौजूद हैं, उनसे तफसील जानते हैं इस वक्त एग्जैक्टली सूरत हाल क्या है। जी आमिर। जी बिल्कुल, भारत आबी जारियत से बाज ना आया। भारत की जानब से छोड़ा जाने वाला बड़ा पानी का रेला फ्लड फोरकास्टिंग के मुताबिक पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो चुका हुआ है। इस वक्त हेड मराला में दरिया चनाब के मकाम के ऊपर दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और इसी तरीके से दरिया मुनावर तवी, दरिया जम्मू तवी में भी जो दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है। बलाई इलाका जात है, वहाँ पर होने वाली मुसलसल मूसलाधार जो बारिशें हैं उनकी वजह से सियालकोट में से गुजरने वाले जितने भी नदी नाले हैं उनमें तुगयानी का खदशा बढ़ चुका हुआ है। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के जानब से हालात से निपटने के लिए तमाम महकमा जात में जो है वो हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हेड मराला के मुकाम के ऊपर गुज़िश्ता हफ्ते भारत की जानब से 9.5 लाख जो क्यूसेक का रेला छोड़ा गया था, जिसकी इससे पहले इसकी मिसाल नहीं मिलती और जिसने हर तरफ तबाही मचा दी थी। तैयार जो थी धान की फसलें, चारा की फसलें, वो जो थी वो पानी में बह गई। शहरियों के हजारों की तादाद में माल मवेशी जो है वो भी पानी में बह गए, अमलाक को नुकसान हुआ। जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है वो इस वक्त हालात को निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। जी दरियाए चनाब समेत पंजाब के दरियाओं में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सैलाबी रेले मुजफ्फरगढ़ के इलाके रंगपुर सुपर बंद तक पहुंच गए हैं। दरियाए सतलुज में भी तुगयानी है। बहावल नगर की 150 किलोमीटर तवील दरियाई बेल्ट की 1 लाख से ज्यादा आबादी खुले आसमान तले रहने पर मजबूर है। झंग में त्रेमू हेड से तारीखी पानी का रेला गुजर रहा है। सियालकोट, इलाहाबाद, पिंडी भटियां और दीगर शहरों में भी कई बस्तियां पानी में डूबी हैं। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी, छोटे बड़े शहरों में पानी ही पानी। दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब, सैलाबी पानी मुजफ्फरगढ़ के इलाके रंगपुर सुपरबंद तक पहुंच गया। लोग अपनी मदद आप के तहत शहर बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। बिल्कुल बांध की हिफाजत करें दे पे माल ही थाई ले बैठे हैं। राशन पानी वाले कोई नहीं आ रही दे, साढ़े माल मवेशी इथाई है, बाल बच्चे इतने ने बांध ते ड्यूटी दे रहे हैं, कोई सान सहूलियात नहीं मिली। दरियाए सतलुज में 37 साल बाद भारत की जानिब से आने वाले बदतरीन बड़े सैलाब ने भावल नगर जिले की 150 किलोमीटर तवील दरियाई बेल्ट की 1 लाख से जायद आबादी को खुले आसमान तले रहने पर मजबूर कर दिया। साਡਾ बहुत सारा नुकसान होया। जिला भावल नगर में सानू खाना पीना मिल रही है 3 टाइम, कोई सानू मसला जी नहीं हुआ। पानी मिल रहा साडा भी फसलों का नुकसान होया। इत्थे आके इत्थे हुण सानू कैंप भी मिले ने, खाना वगैरह हर चीज सानू इत्थे बेहतर जी टेंट लभदी पई। झंग में तरीमू हेड से पानी का तारीखी रेला गुजर रहा है, जहां से 3 लाख अफराद का इनखला हुआ और 2 लाख से जायद मवेशियों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया।
सियालकोट में अब भी सैलाब का पानी 3 से 4 फीट तक मौजूद, लोग अपने घरों में महसूर। इलाहाबाद में हद निगाह पानी है, मेलसी में भी सैलाबी सूरत हाल है, लोगों के सरों से छत छिन गई, खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। पानी आ गया, बड़ी मुश्किल दे नाल असां बांधते निकले, साडे छोटे छोटे बच्चे खुले आसमान तले बैठे, किसी ने साडी मदद की, ना हुकूमत की है ना आवाम की थी। पिंडी भटिया में दरियाए चनाब में सैलाब से तबाहकारियां, रेस्क्यू ऑपरेशन में 1500 से जायद लोगों को निकाला जा चुका है। चिनियोट में मुखय्यर हजरात ने सैलाब मुतासिरीन के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दिए, लोगों को खाने के साथ साथ माल मवेशी का चारा भी दिया जा रहा है। सारे के सारे जो गांव हैं वो सारे दरिया बुर्द हुए पड़े हैं, जो सैलाब मुतासिरीन है उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, जो हो सकता है उनकी इमदाद कर रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं, उनको चारा दे रहे हैं, उनके जानवरों के लिए जगह उनको फराहम की हुई है। चिश्तियां के मुकाम पर हिफाजती बंद टूटने से 100 देहात ज़ेरे आब आ गए, हजारों एकड़ पर फसलें बर्बाद हो गईं। सैलाब ने हजारों एकड़ पर लगी फसलें तबाह कर दी। चिनियोट में जानवरों का चारा भी नायाब हो गया। ऐसे में रात के इस पहर भी फलाही इदारा जानवरों के लिए मुफ्त चारा फराहम करने में मसरूफ़ है। मज़ीद बता रहे हैं अमीर उमर चमान। दरियाए चनाब के हालिया सैलाब ने बहुत सी तबाहकारियाँ की हैं और यहाँ पे लोगों के लिए जो मुख्तलिफ जगह पे खाना दिया जा रहा है, लेकिन जानवरों की तरफ किसी किस्म की तवज्जो नहीं दी जा रही। एक फलाई तंजीम है जो रात के इस पहर भी जो है मुख्तलिफ धारियों के ऊपर जाके मुख्तलिफ लोगों के पास जाकर जानवरों को सैलेज और मुख्तलिफ जो है उनके खुराक पहुँचाने का इंतजाम कर रही है। रोड के अंदर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो मोस्टली जो हमारा अभी मेन फोकस है वो हम एनिमल फीडिंग के ऊपर है। भी हमें जो हमारे पास कुछ चारा बचा है तो हम बाकी जो एनिमल्स बचे हैं हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये लोग जो है जानवरों की खुराक जो है इसमें चारा है, सैलेज है, वो उन लोगों तक फ्री मुहैया कर रहे हैं और रात के इस पैर तक ये लोग काम कर रहे हैं और इनका ये मुसलसल अगले 10 दिन तक ये मुसलसल चिनियोट के अंदर काम करेंगे और फिर इसके बाद ये झंग और दीगर इलाकों में भी जाएंगे। जी, झंग में दरियाए चनाब का सैलाबी पानी सैकड़ों देहात में तबाही मचाने के बाद गढ़ महाराजा के गाँव रियाजवाला पहुँच गया है। 5000 के करीब मकीन चारों तरफ से पानी में महसूर होकर रह गए हैं। मजीद बताएंगे कमरुज़्ज़मान। में हेड त्रीमू पर पानी की सतह की बात की जाए तो दरियाए चनाब में त्रीमू के मुकाम पर इस वक्त पानी की सतह कम होकर 3,99,000 क्यूसेक रह गई है। सुल्तान बाहू पुल के साथ और उस गढ़ महाराजा में जो पानी इस वक्त पहुंच रहा है बड़ी तेज़ी के साथ जो है 200 के करीब देहात को मुतासर करता हुआ इस वक्त गढ़ मोड़ की तरफ पानी जा रहा है। गढ़ महाराजा में लैया रोड पर जो इलाका है यहाँ पर रियाज वाली वहाँ पर मौजूद हूँ। उस गांव में जो पानी ने बड़ी तेज़ी से पानी जा रहा है और इस पानी ने इस गांव को चारों तरफ से अपने घेरे में ले लिया है। यहाँ पे मकीनों की बड़ी तादाद इस वक्त गांव में महसूर होकर रह गई है। लोग अपने घरों के बाहर बैठे हुए हुकूमती इमदाद के मुंतज़र हैं कि यहाँ पर इंतजामी जो है यहाँ पर मशीनरी आए और इनको गाँव से किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल करे। 35 किलोमीटर दूर अहमदपुर सयाल तहसील जो है उसका इलाका समद्दूआना है, वहाँ बहलोल वाला जो बंद है दरियाए चनाब पर वो टूट गया है। लोग भी अपनी मदद आपके तहत वहाँ पर शगाफ कपूर करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इंतजामी मशीनरी भी वहाँ पर शगाफ भरने के लिए मसरूफ़ है। जी, मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला की हदूद से दरियाए चनाब में 4.5 लाख क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। तफसील क्या है जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे राना फारूक से। इस वक्त हम हेड मोहम्मद वाला दरियाए चनाब के मकाम पर मौजूद है। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि तकरीबन 4.5 लाख क्यूसिक पानी का रेला यहाँ से गुजर रहा है। इसकी सतह मुसलसल बुलंद हो रही है, 6 लाख क्यूसिक तक ये पानी पहुँच सकता है और अगर ऐसा होता है तो बड़े पैमाने पर नुकसानात हो सकते हैं। इंतजामिया की जानिब से नुकसानात से बचने के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ पर ब्रीचिंग सेक्शन भी बना दिया गया है। हेड मोहम्मद वाला जो बंद है वहाँ पर भारी मशीनरी पहुँचा दी गई है। 5 लाख से ज़ायद अफराद को मुंतकिल कर दिया गया है महफूज मकामात पर। उनके जानवरों के साथ किसी भी किस्म का कोई नुकसान होने का खदशा होता है तो यहाँ पर आज रात या कल सुबह ब्रीच कर दिया जाएगा ताकि जो मुल्तान की आबादी है, मुल्तान शहर है, उसको किसी भी किस्म के नुकसान से बचाया जाए। मुल्तान की इंतजामिया का कहना है कि आइंदा 10 से 12 घंटे बहुत ज़्यादा अहम है। जी, रूस और भारत के ताल्लुकात का एहतराम करते हैं, हम भी रूस से मजबूत ताल्लुकात चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात में गुफ्तगू। बीजिंग में वज़ीर आज़म और रूसी सदर की अहम मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने कहा खित्ते में तवाज़ुन के लिए पाकिस्तान की हिमायत पर रूसी सदर के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म ने रूसी सदर को बाअसर कायद करार दिया। व्लादिमीर पुतिन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रूस के दौरे की दावत दी।
also thank you for supporting Pakistan and trying to have a balancing act in the region. We respect your relation with India, that's perfectly fine. But we also want to build very strong relations. These relations will be for the good and for the progress and prosperity of the region. I find in you a very dynamic leader, and I want to assure you that I'd like to work with you very closely. Together we have been making very serious and sincere efforts to promote our bilateral relations, particularly in the field of commerce, trade. We imported oil from Russia. That led to increase in our bilateral trade. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के सदर से वफूद की सतह पर मुलाकात। बीजिंग में मुलाकात के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर भी शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी सदर की कायदाना सलाहियतों की तारीफ़ की। वज़ीर आज़म ने कहा CPEC की अपग्रेडेशन के तहत मज़ीद 5 राहदारियों का इजाफ़ा किया गया है। सदर शी जिनपिंग ने इक़्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखने का ऐलान किया। चीनी सदर ने कहा CPEC के दूसरे मरहले में पाकिस्तान के अहम तरीन इक़्तिसादी शोबों पर तवज्जो है। Enroll initiative, flagship project in Pakistan, CPEC, and of course, winning hearts and minds, because your progress and your prosperity has been shared by you, by millions and millions around the globe. And I want to assure you, Mr. President, that I will work very closely with you to further strengthen our bonds. सिफारती तन्हाई और माशी मुश्किलात में मुब्तला भारत को एक और बड़ा धचका। सऊदी अरब और इराक़ ने भारतीय ऑयल रिफाइनरी को खाम तेल की फ़रोख्त बंद कर दी। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे रॉयटर्स ने बताया सऊदी आरामको और इराक़ी कंपनी सोमो ने भारत की नयारा एनर्जी को तेल की फराहमी रोक दी है। यूरोप की रूसी हिमायती कंपनियों पर पाबंदी के बाद भारत को तेल फराहमी बंद की गई। रॉयटर्स के मुताबिक भारतीय कंपनी नयारा अब सिर्फ रूस से तेल खरीदारी पर इन्हिसार कर रही है। दरियाए सिंध कोटरी बैराज पर सैलाबी सूरत हाल है। ज़िला इंतज़ामिया ने दरियाए सिंध के करीब मकीनों को घर खाली करने के ऐलानात शुरू कर दिए हैं। जाम फरीद हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद तफसील जान लेते हैं। जी जाम फरीद। जी बिल्कुल, दरियाए सिंध कोटड़ी बैराज डाउन स्ट्रीम पर जो निचले दर्जे की सैलाबी रेला है वो गुजर रहा है, जिसके बाद जिला और सैलाबी सूरत इधर हो गई है, जिसके बाद जिला इंतजाम है वो इरीगेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जो दरियाए सिंध के करीबी मकीन जिसमें सहरिश नगर है, सेमी चुमरो गाँव है, मल्हा गोट है, हुसैनाबाद, लतीवा 4 नंबर, लतीवा 10 नंबर, उनको नकल मकानी करने के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जबकि जिला इंतजामिया की जानिब से आज रात के अंधेरे में ये ऐलान किए गए हैं कि जो सैलाब की सूरत हाल है उससे बचने के लिए जो यहाँ पे मकीन है वो किसी महफूज जगह पे चले गए। असिस्टेंट कमिश्नर कासमाबाद हरकत सयाल का कहना है कि अमकानी तौर का जो सैलाब है वो से बचने के लिए ये जो इलाका मकीन है और माले मवेशी है उसको महफूज जगह पे मुंतकिल करने के लिए हमने नोटिस जारी किए, उनको आगाही दी, लेकिन जो इलाका मकीन है वो उनकी बात नहीं सुन रहे, जिस बात वो रात के अंधेरे में ये ऐलान जारी कर रहे हैं। जो डाउन स्ट्रीम कोटड़ी है वहाँ पे 2.5 लाख से ज़ायद जो पानी है जो कि 28,317 लीटर फी सेकेंड गुजर रहा है, तो 1 क्यूसेक पानी फी सेकेंड ये गुजर रहा है। तो इस पर अभी जो है सैलाबी सूरत हाल है, इसी वजह से जो इलाका मकीन है उनको जो ऐलानात के ज़रिए नोटिस देकर उन्हें नकल मकानी करने, उन्हें महफूज जगह पे मुंतकिल करने की हिदायत जारी की गई हैं। जबकि जो इलाका मकीन है उनका कहना है कि ज़िले इंतज़ाम की जानिब से हमें कोई भी ऐसी जगह नहीं बताई गई जहाँ पे वो नकल मकानी करें। जी बहुत शुक्रिया। ज़िले इंतज़ामिया पारां इन ऐलान के ज़रिए गुज़ारिश कजे थी त महिरबानी करे पंहिंजा घर खाली करे महफूज मकाम ते पहुंची वञनि, छो त पंजाब में तबाही फैलाने वाला सैलाब सिंध की जानिब बढ़ रहा है। गुड्डू बैराज पर पानी का बड़ा रेला आने वाला है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने दरिया किनारे बसने वाले अफराद और कच्चे के मकीनों से फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की अपील की। कहा एक बार पानी आ गया तो बड़ा चैलेंज होगा, हमारे लिए हर एक जान कीमती है।
तबाह करे मचाने वाला जो रेला है वो अब सूबा सिंध में दाखिल होने वाला है। बहुत कम टाइम रह गया है। गुड्डू बैराज पर ये पानी का एक बहुत बड़ा रेला आ रहा है जिसका हुकूमत सिंध ने इसको सुपर फ्लड का नाम दिया है। तो हमारी गुजारिश है तमाम उन लोगों से जो कि इस बेल्ट में रहते हैं, जो कच्चे के इलाके में और जो कि दरिया के साथ जिन लोगों के मकानात हैं, इंतजामिया ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, हुकूमत के अपने रिलीफ कैंप्स भी मौजूद हैं। इस पानी के आने से पहले आप बराए मेहरबानी जो है वो सेफ मुकामात पर आप मूव हो जाएं। अगर एक दफ़ा पानी आ गया तो फिर जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा और फिर आपको कश्तियों में और किसी तरीके से निकालना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो मसला ये होता है कि फिर उसमें हादसात भी होते हैं। पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के काला बाग डैम के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पहली बार वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के मौक़िफ़ की हिमायत करती हूँ। गंडापुर ने मुस्बत और खुशाइंद बात की है। ये वक्त एक कौम बनकर फैसले करने का है। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान मुस्तरद कर दिया। पीपी सिंध के सदर निसार खोड़ो कहते हैं, सिंध वाले दरियाए सिंध पर जान देते हैं। काला बाग के मामले पर साफ इनकार होगा। ये पीपल्स पार्टी का सिर्फ मसला नहीं है, ये 3 सूबाई असेंबलियां जिन्होंने 3 दफा रेजोल्यूशन पास किया कि काला बाग डैम नहीं बनना चाहिए। सिंध वाले दरियाए सिंध पर जान देते हैं। कोई काला बाग का नाम लेता है तो फिर जाहिर है इनकार होगा। अली अमीन साहब को जरा थोड़ा सा सियासत पढ़नी चाहिए। वो कोई एक्सपर्ट नहीं है कि वो इस तरह से बात बोले। बलूचिस्तान के सूबाई वजीर आबपाशी ने सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा है, बलूचिस्तान और सिंध के मफादात एक हैं। सिंध और बलूचिस्तान में अगर सैलाबी सूरत हाल होती है तो दोनों सूबों को नुकसान होगा। काला बाग डैम के हवाले से सवाल पर कहा, जो भी सिंध की पॉलिसी होगी हमारी भी वही पॉलिसी होगी। बलूचिस्तान और सिंध का मफादात हमेशा एक रहे हैं। सिंध और बलूचिस्तान के अंदर अगर सैलाबी सूरत हाल यहाँ पैदा होती है तो दोनों सूबों के नुकसान आते हैं। KPK का वज़ीर आला काला बाग डैम की हिमायत कर रहे हैं, तो इसमें आप क्या कहेंगे? सिंध के जो भी पॉलिसी होगी, जो हिकमत अमली बनाएंगे किसी भी इशू पे, क्योंकि हमारे मफादात सिंध के साथ हैं, हम हर सूरत में बलूचिस्तान की आवाम, बलूचिस्तान की हुकूमत, बलूचिस्तान के वज़ीर आला सिंध के साथ हैं। बानी PTI मुज़ाकरात चाहते हैं, डील नहीं। अडियाला जेल में बानी से मुलाकात के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी की रिहाई कानूनी तरीके से होगी। काला बाग डैम से मुतालिक बैरिस्टर गौहर का कहना था, डैम ज़रूर बनने चाहिए लेकिन इत्तफ़ाक़ राय ज़रूरी है। इत्तफ़ाक़ राय के बगैर नहरें नहीं निकाली तो डैम क्यों बनाएं? कि कौम की खातिर, मुल्क की खातिर, आज़ाद अदलिया की खातिर, जमहूरियत की खातिर मैं बात करने को तैयार हूँ। डैम बनने चाहिए और डैम तो एट द एंड ऑफ द डे बनेंगे भी, चाहे वो छोटे हो, चाहे वो बड़े हो, चाहे वो काला बाग हो। सारी प्रोविंसेस की कंसेंसस से डैम बने। मुल्क ऑलरेडी एक पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है, कंसेंसस के साथ बने। जब नहर आप नहीं निकालते विदाउट कंसेंसस तो डैम आप क्यों बनाए? 40 साल से जिस निज़ाम का हिस्सा हैं उसी को गालियाँ दे रहे हैं, निज़ाम को हाइब्रिड करार दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब, कहा यहाँ सबको वायरल होने का शौक़ है, अगर ये सब करना है तो फिर हुकूमत छोड़कर अपोजिशन में चले जाना चाहिए। एबटाबाद में रात गए तूफ़ानी बारिश, शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर हुआ है। मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी है, पानी सड़कों पर जमा हो गया है। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। नालों पर तजावुज़ात और निकासी आब के मसाइल के बायस नवां शहर और लोअर कोहसार टाउन में पानी घरों में दाखिल हो गया, जिससे मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। तूफ़ानी बारिशों ने शुमाली भारत को मफलूज कर दिया। दिल्ली समेत मुतादिद रियासतों में सैलाब से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। दरियाए जमुना बिफरने से सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए, फसलें तबाह, घर डूब गए, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। पंजाब में 29 अफराद हलाक, मुतादिद पुल और सड़कें बंद कर दी गईं। गुड़गांव में 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश के बाद स्कूल और दफातर बंद कर दिए गए। मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली। महकमा मौसमियात ने दिल्ली, उत्तराखंड और पंजाब के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। हज़ारों लोग बेघर हो गए। मकबूजा कश्मीर में भी सूरत हाल संगीन हो चुकी है। अफगानिस्तान में तबाहकुन ज़लज़ले से अमवात की तादाद 1411 हो गई। 3000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं। 5400 मकान तबाह हो चुके। इतवार को आने वाले 6 शिद्दत के ज़लज़ले से सूबा कुन्नड़ लरज़ उठा।
ننگرہار، لغمام، نورستان اور پنجشیر میں خوفناک تباہی ہوئی۔ گاؤں کے گاؤں صفائے ہستی سے مٹ گئے۔ کابل میں بھی جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کا مرکز جلال آباد سے 27 کلومیٹر مشرق میں تھا۔ گہرائی 8 کلومیٹر تھی۔ کئی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ بھی ہوئی، جس کی وجہ سے امدادی کاموں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔